चलो यार फटाफट कंफर्म करो इन चैट बॉक्स सो दैट वी मूव अहेड. Is Unit 9 clear? Is the Indian Contract Act clear? I hope this is helpful. Okay. Again, if you want to take a screenshot, Unit 1, 2 to 3 marks, you can do it towards the very end. You will start with Unit 9, which is the very important chapter, expecting 10 marks over here. This may be irrevocable agency, very, very important. Then you will move to Unit 2, privity of contract. All right, your legal rules. All right, then you will move to Unit 6 and Unit 7. Unit 6 भी आपको उतना ही importance देना है जितना Unit 9 को देना है. And contingent contract, just mug it up, learn it. It will come in the exam. Okay. After that, you can move to Unit 7 where you focus on all the red वाला points first. फिर देखो आपका revision दूसरा करने का ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से कर लेना. All right. One question from performance of a contract. उसके अंदर भी मैंने आपको बोला point number 5 is important. Look at this वाला part and time and place of performance. ये आप उस पर फोकस कर लेना. One question for 5 marks is expected. Then Unit 3 के अंदर minor position in a contract is very very important. ठीक है. And दूसरा Unit 4 के अंदर discharge of a contract. Now with this, our Contract Act is completed. Once you are done with this, we will move to sale of goods. All right, sale of goods के अंदर 4 units है. Unit 1 again you can quickly go. All right, can quickly go through Unit 1. Unit 2 beta caveat emptor, very very important and expected for tomorrow's exam. All right, so what have I written? One question for 4 marks. ये 4 mark का caveat emptor आएगा. And caveat emptor again was not tested in your September attempt. So it becomes very very important for your Jan attempt. September में नहीं आया था. In fact उससे पहले वाले attempt में भी, May attempt के अंदर भी नहीं आया था. ठीक है. मई जून जैसे हिसाब से. ठीक है. नाउ यूनिट 3 बिकम्स इंपॉर्टेंट. यूनिट 3 बिकम्स इंपॉर्टेंट. यूनिट 3 के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड. ठीक है. राइट्स ऑफ अनपेड सेलर को फर्स्ट नहीं सॉरी रूल्स ऑफ द डिलीवरी. तो छोटे क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स. पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है. All right, and Unit 4 के अंदर rights of unpaid seller is expected in the exam. All right, rights of lien भी है but I expect unpaid seller. तो ये 2 points पे आपको पूरा focus करना है, point number 2 and point number 3. These 3 are expected. See, all of these things in green are expected, but I'm focusing more on the ones का probability of coming in the exam is much more. ठीक है. All right, now Indian Partnership Act. So Unit 1, 2, 3, 4. You start with Unit number 2. You go with Unit number 3. Then Unit number 4. So 2, 3, 4 and then you will go to Unit number 1. Caveat emptor को एकदम पक्का कर लो. Learn the provision. जितना भी effort है वो caveat emptor के अंदर डाल दो. And then you go to unpaid seller, rights of unpaid seller कर लेना. All right. एक तो देखो concept है and दूसरा rights है. ठीक है. So do that पक्का करके. Then Partnership Act में भी Unit 1 will be your last priority. Unit 2 again 5 to 10 marks are expected. उसमें भी effects of admission by a partner. This वाला part is important and again minor's position in a partnership. All right, when can be a minor? वो 6 months वाला जो अपना point था. All right, on the age of maturity he can elect to be a partner or not to be a partner. So minor's position both in a Contract Act as well as Indian Partnership Act should be very very clear. ठीक है. And effect of admission by a partner, important, section number 23. ठीक है. Your Unit 3 आप क्विक फटाफट आप देख लेना. Unit 3 पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना. तो इनफैक्ट आप क्या करो, Unit 2, Unit 1 and then Unit 3. All right, they can be small questions that are expected in Unit 3. All right, now Companies Act beta, you have to do all of these. Please mark this or take a screenshot. At least 20 to 22 marks. देखो September 24 में वो लोग ने 20 marks के लिए Companies Act पूछा था. All right, so Jan और जून में 22 marks के लिए पूछा था. तो ऑलमोस्ट इसका वेटेज बहुत बढ़ गया है एंड पढ़ने के लिए कम है. All right, तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर आप Companies Act फिनिश कर दोगे ना तो इट विल बी नथिंग लाइक इट. ओके,
तो यू कैन स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट एंड इसके अंदर भी ये वाला कर लो ना. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस is very important because last time they asked doctrine of ultra virus. All right, doctrine of ultra virus पूछा था लोग ने. ये बार doctrine of constructive notice या indoor management is expected. ठीक है. इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना फोकस नहीं करना. नेम क्लॉज वाला आपको फोकस करना पड़ेगा. ऑल राइट, कि आपका जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जो प्रीफिक्स लगता है, सॉरी सफिक्स लगता है, वो आपको कहाँ कहाँ कौन सा सफिक्स लगेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. योर सेक्शन 8 कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन कम एज अ स्मॉल क्वेश्चन और अ स्मॉल कॉन्सेप्ट. ठीक है. प्राइवेट कंपनी का जो लिमिट्स है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ऑल राइट. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे इतना आप फोकस नहीं करोगे, दैट इज ऑल्सो ओके, बट डेफिनेशन ऑफ प्रोमोटर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपनीज एक्ट वाला पार्ट. ठीक है. ओपीसी डॉक्ट्रिन, डेफिनेशन ऑफ प्रोमोटर, नेम क्लॉज के रिलेटेड जो भी है, प्राइवेट कंपनी के लिमिट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑल 1 to 11. बट ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो 99, इंडोर मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो 99.9% आएगा, और ये ईजी भी है बेटा. ठीक है. इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी नो दैट द कंपनी, इट इज अज्यूम्ड that the internal rules and regulations have been followed. ठीक है. The outsider does not need to verify. All right. So weightage ज़्यादा है, पढ़ने के लिए कम है. लास्ट 2 अटेम्प्ट से they have asked around 20 to 22 मार्क्स, तो 20 मार्क मिनिमम तो Jan 25 के अंदर आई गई. अब कंपनीज एक्ट के बाद अपने पास LLP बच गया है बेटा. LLP इज वेरी वेरी सिमिलर टू कंपनीज एक्ट. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस दैट आर देयर और 10 कॉन्सेप्ट्स. नेगोशिएबल के अंदर इसमें भी देखो स्मॉल LLP लिमिट का इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, इस पे आप फोकस करना. ऑलराइट. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए करना, नेम क्लॉज रिलेटेड करना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. So these 10 points are very important in LLP. Do it after you are done with Companies Act, Indian Contract Act, Sale of Goods Act and Partnership Act. Okay. इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी तक इतना लोग पूछते हैं नहीं, कितनी बार ऑप्शन के अंदर चले जाता है, बट ये बार आई वुड मार्क एक्सप्लेन अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दिस शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी. 4-5 मार्क के लिए आया तो आया. ठीक है. नेगोशिएबल के अंदर प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आपका रहेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपेक्टेड 99.9% इन टुमारोज एग्जाम. ओके. सो आई होप आपको प्रायोरिटी एंड फोकस वाइज समझ में आ गया है. So your study order would be, first you will finish around Indian Companies Act. Sorry, you will finish the Companies Act 2013 first, priority आपका रहेगा. Second you will finish with Indian Contract Act, जो भी मैंने आपको important mark कराया है. ठीक है. Your third will be sale of goods. Fourth will be Indian Partnership Act. Okay. Fifth will be negotiable instrument. Sixth will be LLP. And your regulatory framework. All right. Regulatory framework के लिए आपके पास टाइम बचा, तो you can do it. So what I would say is, कल तक आपके पास जो 2 बजे का टाइम है ना, आप उस पर ये चीज़ें कर सकते हो. नेगोशिएबल, LLP एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. अभी के लिए, आज के लिए योर टारगेट शुड बी टू फिनिश दिस बिफोर यू गो टू स्लीप. योर कंपनीज एक्ट 2013 completely. I hope you have taken the screenshot over here. उसके बाद you will move to the Indian Contract Act over here. उसमें भी मैंने यूनिट वाइज आपको बता दिया है क्या क्या करना है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब. ऑल राइट. एंड देन यू विल मूव टू सेल ऑफ गुड्स. देन इंडियन पार्टनरशिप. इंडियन पार्टनरशिप में भी यूनिट 1 लास्ट में करना, यूनिट 3 एंड 2 को पहले आप कर लो. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट है, LLP एंड देन योर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. I hope this is clear. I'll show the screen once again in case you want to take a screenshot.
ऑल राइट, सो दिस इज डन आई होप। ये इधर हो गया, फिर ये इधर है। अब बेसिकली आपका टारगेट होना चाहिए जो मैंने मार्क किया है, जो मैंने मार्क किया है उसको ही रिवाइज करो, एंड जिसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया है उसको तो आप पक्का पक्का करके जाओ। ऑल राइट, यू डोंट हैव टाइम टू स्टडी एनीथिंग एल्स और एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो ये करोगे एटलीस्ट एक मेंटल पीस आएगा, एंड आई एम टेलिंग यू अराउंड 50 to 60 मार्क्स आपका कवर्ड है या प्रिडिक्टेड है इफ़ यू फॉलो व्हाट आई हैव गिवन यू। ठीक है, now we'll move on to the next part. The next part is how to present your answer. There are few things that you have supposed to keep in mind. आपको facts लिखना है but facts के ऊपर marks नहीं मिलते, तो आपको facts पे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, second, provision. Okay, now when you are writing the provision you will give reference to the section number. अगर याद है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, you will write with according to the provisions of Indian Contract Act या Indian Partnership Act, but over there you have to remember that do not start writing explanations when you are writing provision. Okay, so according to the provisions मतलब आप law या bare act की बात कर रहे हो, and if you are talking about the act has to be very very specific. जैसे consideration shall move at the desire of the promisor for example, तो आपको वो प्रिसाइज लिखना है। अगर क्वेश्चन कंसिडरेशन पे है ही नहीं और आपने कंसिडरेशन का प्रोविजन लिखा हुआ है तो कोई मतलब का नहीं होगा। कितनी बार हम क्या करते हैं, पहले प्रोविजन लिख देते हैं एंड फैक्ट्स के अंदर भी वापस प्रोविजन घुसा के एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने सेम चीज डबल बार लिखी है, आपको कोई मार्क्स ही नहीं देगा, वो इज नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू विद एनी मार्क्स, स्ट्रेट 0 मिलेगा उधर। ठीक है, थर्ड में आपका आ जाता है एनालिसिस, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्स के अंदर ही एनालाइज कर रहे हो। एंड फोर्थ वाला आपका आ जाएगा, दैट इज द कंक्लूजन। ओके, so your answer has to be divided in 4 parts, जिसमें your focus should be more on the provisions and the conclusion. All right, facts and analysis को बहुत brief में रखो, उनको mix मत करो। Another thing that you are supposed to keep in mind is don't write the same thing again and again. Please understand that your paper is written by a qualified chartered accountant who has seen a lot of papers. Don't try to outsmart him by writing unnecessarily long answers. पेज भरने के लिए आप एक ही चीज को बार बार अलग वर्ड्स के अंदर लिख रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू कीप द आंसर ब्रीफ, कीप इट शॉर्ट, लंबा लंबा पैराग्राफ्स नहीं लिखना है, डिवाइड योर आंसर इन नाइस सेक्शंस। ऑलराइट, अगर आपको चाहिए तो आप सब हेडिंग दे दो कि भाई फैक्ट्स ये है। फैक्ट्स क्यों छोटा मार्क्स है, बिकॉज आप क्वेश्चन में से ही उसको कॉपी करते हो। आपका मेन टेस्टिंग होगा ये प्रोविजन के ऊपर एंड कंक्लूजन, बिकॉज आपको रियलाइज हुआ कि नहीं आपने कौन सा सेक्शन अप्लाई किया एंड आपने उसको करेक्टली अप्लाई किया कि नहीं कंक्लूजन। बिकॉज एनालिसिस भी समवेयर क्वेश्चन में से ही आ जाता है, बट आप इन दोनों को क्लब कर देते हो। ठीक है, सो डोंट मिक्स अप, प्लस डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट द एग्जामिनर, बीइंग वेरी सिंपल। ऑलराइट, उसको आउटस्मार्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आप डिवाइड कर दो, चाहिए तो एक पेज में आपका आंसर फिट हो जाता है, चलेगा। 3-4 लाइन में आपका प्रोविजन खत्म हो जाता है बेटा। इतना लंबा लंबा प्रोविजन थोड़ी ना होता है। जब बेयर एक्ट इटसेल्फ इज ऑफ 3 लाइन्स, तो हम क्यों लिख रहे हैं 8-8, 9-9 लाइन उसके ऊपर? तो 4-5 लाइन के अंदर आपका प्रोविजन खत्म हो जाएगा। एनालिसिस अवॉइड आपको लिखना है, आप लिख लो, और उस हिसाब से कंक्लूजन, व्हाट इज इट, वेदर इट इज टेनेबल, वेदर इट इज राइट। जैसे एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर है, तो एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में वेदर द एक्सपल्शन इज वैलिड इन लॉ और नॉट वैलिड इन लॉ, ये आपका कंक्लूजन रहेगा डिपेंडिंग अपॉन योर एनालिसिस। अब एनालिसिस वाला ही पार्ट आप वापस कंक्लूजन में लिखोगे ना लंबा चौड़ा करके, यू विल नॉट, इट्स नॉट रेलेवेंट। So if you have asked for the definition of consideration, if they have asked a particular definition of unpaid seller, तो ही जाके लिखना, वरना नहीं लिखना unnecessary. You don't have to unnecessarily write कि हाँ मेरे को आता है ना सेल ऑफ गुड्स का, सो आई विल राइट इट ओवर हियर, जितना भी मुझे आता है। नो, तो बी वेरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। पेपर एक्सपेक्ट करो, देखो 15 से 20 मार्क तो थोड़ा ट्रिकी रहेगा ही, इसके वजह से हार नहीं माननी, पूरा पेपर पढ़ना है। आप देखो जो मैंने आपको मार्क किया है उसमें से आएगा क्वेश्चंस, प्रायोरिटाइज योर बेस्ट क्वेश्चंस शुड कम फर्स्ट।
जहां आपको मालूम है यार एग्जैक्टली यही प्रोविजन है, यही माइनर का पोजीशन है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ठक 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 आपने लिखा और आपने कंक्लूड कर दिया कि भाई ये माइनर का चलेगा या नहीं चलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, ये ही कंक्लूजन रहता है। तो आप कैसे लिखोगे कंक्लूजन? इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस अबव और इन बिकॉज ऑफ द और इन लाइट ऑफ द एनालिसिस दैट इज कंडक्टेड अबव, इट कैन बी सेड दैट द माइनर, जो भी नाम होगा, ऑल राइट, द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द माइनर इज वैलिड इन लॉ और इज इनवैलिड इन लॉ, ठीक है, और द एक्सपल्शन इज वैलिड इन लॉ और इनवैलिड इन लॉ। या सेल ऑफ गुड्स में रहेगा तो द कंटेंशन ऑफ द बायर इज वैलिड और इनवैलिड। 2-3 लाइन में आपका कंक्लूजन आ जाना चाहिए। आप लोग लिखते हो कंक्लूजन 5-5 6-6 लाइन का, फिर वापस उसके अंदर प्रोविजन घुसाते हो। नहीं यार, आपने लिख दिया ना उधर प्रोविजन, खत्म हो गई बात। एंड प्रोविजन के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ जानना है कि यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है माइनर के बारे में। ऑल राइट, I just want to know what the Contract Act says about the minor's position. What does the Contract Act say about consideration, no consideration, no agreement? उसके जो exceptions है आपने सीधा 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 लिख दिया फटाक से, ठीक है? Is that clear? समझ में आ रहा है? All right. So I'll not take more time. I think paper का flow आपको clear है, focus क्या करना है वो भी clear है. All right. Do you have any doubts as such? If you have any doubts, please put it on the group and I wish you all the very best. ज़्यादा stress मत लो. I hope, was this helpful? Was this helpful? एक clarity आ गया आपको कैसा पढ़ना है। अब last के आपके 12 घंटे है, just give it all, do not stress. आराम से smooth buttery paper जाएगा, don't worry. ओके अगर आप थोड़ा हे वायर हो और आप ऐसा हो कि यार अब नहीं होगा, लॉ में क्या करूँ, बस मैंने जितना बोला है उतना कर लो। देर आर वेरी वेरी हाई, मैं बोल रहा हूँ ना, पास हो जाओगे आराम से। 40-50 मार्क्स तो 60 मार्क्स तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इधर से। ऑलराइट, ऊपर का कुछ और तो लिखोगे, आपको आराम से लॉ में अच्छे से मार्क्स पास हो जाएंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर बेटा? वॉज दिस हेल्पफुल? जस्ट एक बार मुझे ये बता दो, कंफर्म कर लो, क्लैरिटी आया, स्ट्रेस कम हुआ? ऑल राइट, चलो, आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। ग्रुप्स, हाँ, आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। ग्रुप पे डाउट होगा पूछ लो, वी आर एक्टिव, वी विल सॉल्व योर डाउट्स ASAP, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। ये फ्लो में या मेथड में कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज पिंग कर लेना, ठीक है? थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।